हेलो एवरीवन। तो करण, आज हम क्या लेकर आए हैं? आज we have got Navroz for you. नवरोज। अच्छा, नवरोज मतलब नव मतलब नया और रोज मतलब दिन। Exactly, you got it a little bit correct. Navroz is a kind of New Year that we're going to talk about today, but not entirely about its history because that will take us back to the oldest form of religion, and that will take a lot of time. तो आप ये बता सकते हैं कि ये जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन आपने बोला, वो उसका नाम क्या है? Oldest form of religion, if you don't know about that, it is Zoroastrianism. हाँ जी। And another surprising fact for those who are not keeping up well with the history of India and those who belong to India and coming from this same society, they have the people who follow the same tradition living among them only, and those are called Parsis. हाँ जी। तो पारसीस को लेकर, ईरान को लेकर, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म को लेकर और हफ्त सिन टेबल को लेकर और भी कई कम्युनिटीज़ हैं जो इसको फॉलो करती हैं। तो यहाँ पर हमारा मोटिव किसी कम्युनिटी को हाईलाइट करना नहीं है, हमारा मोटिव खुशियों को बांटना है। अलग अलग तरह से, जिस तरह से लोग खुशियाँ बांटते हैं, आपस में मिलते हैं, आज हम उसी की एक फॉर्म आपके सामने लाए हैं। Exactly, and did you know there are different forms of calendars also that we follow? कैलेंडर, मुझे तो एक ही कैलेंडर पता है जो हमारा जनवरी में शुरू होता है और दिसंबर में खत्म हो जाता है। हाँ, so we call that calendar as Gregorian calendar. And apart from that also, in Hindi calendar, as we call Hindi calendars, we have two different versions of calendars that I know about. Those are lunar calendars and solar calendars. So Okay. solar calendars and lunar calendars, they bring to us different forms, two different days of celebrating New Year. Calendar will start अब from some मुझे date. कुछ याद आ रहा है कि जैसे मकर संक्रांति पे भी बोलते हैं कि वो न्यू ईयर है। Exactly. Sankranti is a form of New Year that is depicted in a lunar calendar. And in a solar calendar, can you guess any day that we celebrate as a New Year? बैसाखी। Exactly. Have you got prepared before shooting this video? Yes. So Baisakhi in a solar calendar and Sankranti in a lunar calendar. Just like that, there is a Shenshai calendar for those who set their feet for the first time in our country as Zoroastrians. जी बिल्कुल। तो शहनशाही कैलेंडर जो ये है, ये फॉलो किया जाता है और इंडिया में या पाकिस्तान में रह रहे लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं इसको, जो पारसीज हैं। Any guesses at what time for the first Parsi came in India? Any guesses? They left Iran, they left their own country and they came to India. And this is very important in this video because there are two versions of Nowruz that people celebrate. One celebrated by those who make a major portion of the Islamic Republic of Iran, and one those who have left their countries and now are a part of our country, as we call Parsis. So they both observe the same day on different dates. बिल्कुल। और मुझे करण जो इंटरेस्टिंग बात लगती है या मैंने जो देखी है वो कि जिस तरह से जो ये ईरानी लोग थे, जिस तरह से ये ईरान से आए और यहाँ पर आकर ये मिल गए इंडिया में, यहाँ पे घुल मिल गए। तो एक सेइंग है कि जो फर्स्ट ईरानी यहाँ आया उसने यहाँ के गुजरात के राजा को बोला कि हम लोग यहाँ इस तरह से मिल जाएंगे जैसे मिल्क में शुगर मिल जाती है। तो पर करण, अभी तुम कुछ दो डेट्स की बात बता रहे थे। हाँ, तो two different dates on which Nowruz is celebrated in different forms. Maybe there are a few nuances in both the cultures among those who are celebrating it in Persia or other countries of the Middle East and those who are celebrating in India. So those who celebrate it as per the Islamic traditions, they celebrate it on 21st of March. And those who are in India, the Parsis, the followers of Zoroastrianism, they celebrate it on 16th of August or 17th of August. So that is around 5 months after 21st March. And what is the significance of 21st March? Do you know? 21st मार्च का तो नहीं पता, बट अगस्त 16 तो अभी गुजरा है। तो मार्च में 21st मार्च में आई थिंक स्प्रिंग आती है, स्प्रिंग शुरू होती है। Exactly. So this is one pattern. If you are an enthusiast to know more about New Year's, you will always observe a pattern in every calendar, be it lunar and solar that I already mentioned. There are different patterns. After the season ends, a new beginning starts, and this is where we set always our beliefs on a newer chapter, or a newer path. In this tradition of Hafd Sin and Nowruz, they celebrated on 21st March because 21st March is geographically important date for our Earth also. It is an equinox. Equinox, okay. So equinox is something related to equator. Equinox is the day on which the length of the day and the nights are equal. And if you talk about the placement of celestial objects in our universe, then Earth's equator and Sun's disk, the center of that Sun's disk, both of them coincide.
Both of them are collinear. Okay. Okay, that's a bit of an imagination that I have let out for all of you. But just remember that it is involving sun and earth, and there's a sky. And when we are going to show you our up-since arrangement, you will see 3 components symbolizing the similar arrangement. Can you talk about them? हाँ Those जी, 3 components. तो अभी करण ने आपको कैलेंडर के बारे में बताया और बताया अर्थ और इक्वेटर के बारे में. तो मुझे तो जो इंटरेस्टिंग बात यहाँ लगती है कि मुझे अलग अलग चीज़ें लगाने को मिली यहाँ पर हफ्सिन टेबल पे. और मिरर है, मिरर रिप्रेजेंट करता है ऑब्वियसली सबको, वुमेन को भी मिरर अच्छा लगता है. मिरर ऑल्सो रिप्रेजेंट स्काई, मिरर ऑल्सो रिप्रेजेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन. यहाँ अर्थ है, यहाँ सन है, यहाँ ब्यूटी है, यहाँ हेल्थ है, यहाँ मेडिसिन है. तो सब कुछ यहाँ पर हमने लगाया हुआ है. But I'm talking about 3 components. One is mirror that she has spoken about. Mirror symbolizes the same universe in which the celestial objects are there. So that forms one part of the equinox that we were talking about. Another component is the candles, or the candles only. I love candles. Yeah. So candles here symbolize sun in the Fire. universe. Fire. एक बात और करण जो मुझे लगता है हमें बतानी चाहिए कि ज़ोरोस्ट्रिज्म में जो हम एक बात मानते हैं वो फायर इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इम्पोर्टेंट. Yes, the sacred nature of fire is identified by who not. Everyone knows that how sacred and how important fire was. Now maybe after the technological advancements and the facilitation of all the comforts, right to our kitchen, right to the places where we use most of our fire in our own places, has lowered the importance of it down. Earlier, fire used to play such an important role that in a society there only used to be one center where the fire used to be there, and all the people of the community of the society used to collect their share of fire from that burning wood or burning fire or whatever that source of fire used to be. And that same sacred fire has been preserved for the past 1500 years in one part of Iran. कहाँ पे? I don't remember the name yet. Okay. Coming back to the I Hudson think वो table. चकचक था. चकचक. No, that Chak is a place, but near that Chak place there's another place where that fire is preserved. Okay. Coming to the last component of Hudson table that we are going to describe afterwards also in the video. That symbolizes the entire arrangement of equinox. We have talked about the mirror as sky. We talked about the fire as sun. Now what symbolizes earth? Do you want to tell about that? यहाँ पर एप्पल्स के पीछे आपको वीट ग्रास दिख रही है, तो दैट सिंबलाइजेज अर्थ. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ग्रास सिर्फ यहीं नहीं, ये और कल्चर्स में, हिंदुइज्म में भी उगाई जाती है, ग्रो करी जाती है, और ये सिंबल है प्रॉस्पेरिटी का, फर्टिलिटी का. तो यहाँ पर ये अर्थ है हमारी जो स्काई के आगे, और साइड में सन है जो कि कैंडल्स है. Exactly. So let's see what's all there on a Hudson table. Everything that has been placed over there is a symbol of a concept or a thought. सबसे पहला कंपोनेंट है गार्लिक. गार्लिक सिंबलाइज करता है मेडिसिन एंड इट ऑल्सो कीप्स अवे द इविल आई. तो हम सबको पता है कि जो गार्लिक है वो कितना इम्पोर्टेंट है हेल्थ के लिए. दैट्स वाई इट हैज़ बीन केप्ट ओवर देयर. देन वी हैव गॉट अ टाइमर हेयर. तो टाइम या क्लॉक रखी जाती है जो रिप्रेजेंट करती है टाइम को. दैट टाइम चेंजेस एंड टाइम इज एवरीथिंग दैट इज चेंजिंग अस ऑल. इसके नेक्स्ट साइड पे आप देख सकते हैं देयर इज अ गोल्ड फिश इन वाटर. गोल्ड फिश रखी जाती है. गोल्ड फिश रिप्रेजेंट्स एनिमल्स. एक तरह से हम एनिमल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एनिमल्स को एक जगह दे रहे हैं. और गोल्ड फिश ऑल्सो रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेस. यहाँ पे हमने एक लैम्प रखा है. लैम्प इज बिलीव टू ब्रिंग लक एंड प्रॉस्पेरिटी. आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपके पास है विनेगर. दिस इज विनेगर. विनेगर जैसा कि आपको पता है इज अ गुड प्रिजर्वेटिव. विनेगर रिप्रेजेंट करता है हेल्थ, लॉन्गेविटी एंड पेशेंस. आगे चलते हैं. यहाँ पे आप देखिए, यहाँ हमारे पास कैंडल्स हैं. कैंडल्स रिप्रेजेंट करती हैं फायर को. तो वी आर वर्शिपिंग सन, वी आर वर्शिपिंग फायर, जिसको हम पवित्र, पायस मानते हैं. अब हमारे पास है एप्पल्स. सो एप्पल्स तो सबको पता ही है कि एप्पल्स हमेशा हेल्थ को और ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ द ब्यूटिफुल थिंग इज कि एप्पल्स के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसा है दैट इज वीट ग्रास. दिस रिप्रेजेंट्स अर्थ. अब जो इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ लगेगी, यहाँ हमारे पास अर्थ है, यहाँ हमारे पास फायर है या सन है, और ये है हमारा मिरर.
तो आप सोचेंगे हमने मिरर क्यों प्लेस किया है. मिरर रिप्रेजेंट स्काई और इसका एक स्पिरिचुअल मीनिंग ये भी है, व्हेन यू लुक इनसाइड द मिरर इट्स अ सिंबल ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन. आप अपने बारे में सोचते हैं, आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं. तो एक तरफ जहां हम नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं, नेचर के कंपोनेंट्स को रख रहे हैं, वाटर रख रहे हैं, एनिमल्स रख रहे हैं, प्लांट्स रख रहे हैं, हम अपने आप से भी कनेक्ट हो रहे हैं और फिर हम साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं. अब आपके पास यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हम एग्स यहाँ रखे हुए हैं और एग्स जो है वो ईस्टर पे भी पेंट किए जाते हैं. यहाँ हमने ब्लू पेंट किया है एग्स को. एग्स रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमंस को एंड दे ऑल्सो रिप्रेजेंट फर्टिलिटी, दे ब्रिंग प्रोडक्टिविटी. तो जब आप इस एटमॉस्फेयर में आते हैं, इस ऑरा में आते हैं, तो आपको लगेगा कि सब कुछ यहाँ जो है वो एक पॉजिटिविटी की वाइब्स आपको दे रहा है, चाहे वो लैम्प हो या फायर हो या एप्पल्स हो. नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ हम चलते हैं, वो यहाँ है स्वीट. तो हमने यहाँ पर स्वीट रखी है, तो ये तो हमें पता ही है, कोई भी फेस्टिवल हो या रिचुअल हो वहाँ स्वीट ज़रूर होता है जो आपके मुंह को मीठा करता है और एक अच्छी वाइब्स छोड़ता है. आगे हम चलते हैं तो यहाँ भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, दैट इज सिक्के. जैसे हम लोग दिवाली पे भी सिक्के रखे जाते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉस्पेरिटी को, वेल्थ को, इनकमिंग ऑफ गुड, हैप्पीनेस को. नेक्स्ट हम जब बात करते हैं तो यहाँ है हमारे पास रोज वाटर. तो हक्सिन टेबल पे जब भी कोई आता है तो पहले उस पे रोज वाटर और ये रोज जो पेटल्स हैं वो छिड़का जाता है. उसके बाद वो पर्सन अपना फेस जो है वो मिरर में देखता है और उसमें स्माइल करता है. तो वहीं से आप देखिए कि एक पॉजिटिविटी की शुरुआत हो जाती है. अब हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है रोज. तो देखिए ये रोज जो है यहाँ पे, क्योंकि ये जो टेबल है, ये नवरोज जो है ये स्प्रिंग के एंड में लगाया जाता है. तो यहाँ पे ये जो फ्लावर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्प्रिंग को, कमिंग ऑफ हैप्पीनेस को. सो ये दे आर लुकिंग ब्यूटीफुल ओवर हियर. और लास्ट में जो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दे ऑलवेज कीप सम बुक देयर. तो एक बुक रखना एक सिंबल है विजडम का. तो अब आप देखिए यहाँ पे जो भी हमने कंपोनेंट्स रखे हैं, इनसे हमें हमारी लाइफ में कुछ सीखने को मिल रहा है. दे आर सिंबल ऑफ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो हम डेली करते भी हैं, बट ये हमें बस याद दिलाते हैं कि वी हैव टू कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग्स. सो आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल वे टू कनेक्ट विद नेचर, टू कनेक्ट विद योरसेल्फ एंड देन कंप्लीट द साइकिल.